first answering your question about the structure. So Capexel is, it's a tripartite, it's a consortium between Capexel, the association, and Vibrant Wilcon. So Vibrant Wilcon is the brand of the exhibition. The exhibition is called Vibrant Wilcon. From the government side, we have the support from Capexel. So Capexel is helping us with all the international buyers invitation for the government support, for all the coordination, all the guidance. That is the role of Capexel. Capexel is a membership-based organization. So the members of Capexel are all manufacturers, exporters, traders who are in the building construction materials. They have multiple panels, so all the ceramic industry, sanitary ware, all the cement, glass, paints, all these sectors, those people who are manufacturers, those people who are exporters, traders, they become a member of Capexel. So in the Vibrant Wilcon, everybody can exhibit. Like Sir said, we also have members from other export promotion councils, like Engineering Export Promotion Council, which handles hardware. So even hardware companies are manufacturing. We also did a lot of promotion. We also did a lot of roadshows during the course of the year. We went there to invite delegations. We are having delegations from multiple countries. Like Nilesh Bhai also suggested, many countries and many specific buyers that we selected and invited are those people who are buying from our competitors sector-wise. So, for example, for ceramic, one of our major competitors is Europe. So we have targeted those buyers which are currently buying from Europe. So when they come here, we will have a new export opportunity. So likewise, buyers buying from China, buyers buying from the Middle East, we are very competitive in terms of ceramic price. And because of logistic advantages, because of the proximity, there is a huge volume. Certain products like hardware which are very popular. There are a lot of other factors like the plumbing standards, the construction standards. So the numbers vary, but UAE in general is a very big one. So some are being exhibited this time, but next time onward there will be many more coming in, and likewise. So it will be a sort of Mahakumbh, as Nilesh Bhai mentioned, in the long run on construction industry or infrastructure industry. So this is the whole idea behind it. And the idea was mooted by our government only, that there should be one nation, one expo. So this is what we are going to do. लगभग 250 कंपनियां आ रही हैं जी अभी तो एक्चुअली क्या होता है जी फर्स्ट टाइम में आप लोग अगर मदद करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उठ के यही 700 कंपनियां आ जाएंगी पक्की बात है कारण हम भी मेहनत कर रहे हैं मिल बैठ के जब चलेंगे और अच्छा प्रमोट होगा इवेंट फॉरेनर्स भी आएंगे डोमेस्टिक भी आएंगे दुनिया आएगी तो अपने आप ये इवेंट बढ़ता चला जाएगा कभी ऑटो एक्सपो छोटे से शुरू हुआ था आज आपको बोलने की मुझे जरूरत नहीं है आपको मालूम है सारा तो ये सब चीजें ऐसे ही होती है इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट का वो USD 884 बिलियन था 23 में और 2030 तक क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है हमारे कंट्री में इस वक्त इंडिया का भी मिला लें फॉरेन का मिला लें जो मर्जी करके 2100 बिलियन प्लस हम 5 साल में उम्मीद करते हैं इतनी ग्रोथ होगी क्योंकि हमारे यहाँ रोड्स रेलवेज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और नाना क्या क्या बन रही हैं चीजें तो ग्रोथ तो है और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और घर तो चाहिए इस सब जगह तो आइडिया इज कि ये तो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री तो हमेशा ही है एटलीस्ट फॉर आवर कंट्री ये हमेशा ग्रो करेगा अभी थोड़े समय पहले ही भारत सरकार ने हर एक प्रोडक्ट पे BIS मार्क कंपलसरी किया है हर एक सेक्टर पे वो ऐड करते जा रहे हैं आज मैं एग्जांपल दूं सपोज एज एग्जांपल सिरामिक इंडस्ट्री हम लोग पूरा मोरबी से आप देखेंगे तो US हो यूरोप हो इवन चाइना कोई दुनिया की ऐसी कंट्री नहीं है और दुनिया की कोई ब्रांड ऐसी नहीं है जो आज मोरबी में नहीं बन रही है मतलब अगर क्वालिटी नहीं होगा तो यूरोप जाएगा नहीं क्वालिटी नहीं होगा तो अमेरिका या ऐसे कंट्री में नहीं जाएगा हो सकता है हम अफ्रीका या कोई सस्ता मार्केट वो कवर कर सकते हैं आज इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट आज हम उठ के अगर बात करें थोड़ा ज्यादा सोच के तो हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये ताकत है कि वो दुनिया का मार्केट कर सके और दुनिया का कोई भी क्वालिटी वो इंडिया मैच कर सके
आज मोबाइल भी इंडिया में बन रहा है। तो कोई ऐसा इंडिया की या हमारी इंडस्ट्रीज की वो ताकत में ऐसा नहीं है। हाँ, हम कहीं पीछे पीछे नहीं है, लेकिन हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। रीजन ये हो सकता है कि सपोज एज ए एग्जांपल, सिरेमिक सैनिटरी वेयर के अंदर जो टॉयलेट होता है उसका आउटलेट का डिस्टेंस जो है वो यूएस का अलग है, इंडिया का अलग है। प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो इंडिया का हम पूरी दुनिया को मैच कर सकते हैं, लेकिन यूएस में पर्टिकुलर उसका जो कनेक्टिंग स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको वो प्रोडक्ट का मोल्ड करना पड़ेगा उसके अंदर, या हम कभी भी कहीं जाते तो वही सीखना होता है कि उस कंट्री का स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कनेक्टिंग डायमेंशन मैच करें। तो जैसे हमारा कोई ऑटोमोबाइल्स में हम बात करें कि कोई कार हमें एक्सपोर्ट करना है, तो हमारा जो ड्राइविंग साइड है वो अलग कंट्री का ड्राइविंग साइड अलग हो सकता है। अगर वो कंट्री में हमको एक्सपोर्ट करना है तो हमारा जो स्टेयरिंग है और वो चेंज करना पड़ेगा। तो सेम कोई कोई टेक्निकल प्रोडक्ट है उसमें वो चेंज करना है। बाकी जहाँ तक मैंने आज तक पिछले 15 साल से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं एज अ ट्रेड, एज अ क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये हमारी इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, आज ये भी रीजन है कि हम पूरे सेक्टर को साथ में लेके जा रहे हैं। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।